Hello students, I am Professor Neeta. Welcome in our free education channel English Master. We are going to learn 12th class English textbook series and Astrologist Day Brainstorming Part 2. I have already taught and uploaded Brainstorming Session Part 1. So we are going to learn this question answer series in Hindi with me Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Do like, share, subscribe our channel. So चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को. Thanks a lot for your love and support dear parents and students. Keep supporting our channel. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर A4 है. ऑलरेडी पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर A1 A2 A3 हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और यहाँ पर हम A4 से लेके A7 तक सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद आंसर्स. वर्ड यूजेस. यूज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड राइट द सेंटेंसेस. ब्रैकेट में दिए गए जो वर्ड्स है उनका इस्तेमाल करके आपको जो दिए गए सेंटेंस है उनको वापस लिखना है. रिराइट यानी वापस लिखना. ओके. So the power of his eyes was considerably enhanced. Enhance यानी बढ़ना, enhancement यानी वृद्धि. यहाँ पे देखिए answer. There was considerable enhancement in the power of his eyes. So this is your answer. B. He had a working analysis of mankind's troubles. यहाँ पे आपको working की जगह क्या यूज करना है? Worked यूज करना है. Let me just highlight it. Worked यूज करना है. So the answer is he had worked out an analysis of mankind's troubles. और यहाँ पे क्या आ गया आपका? Enhancement. There was considerable enhancement in the power of his eyes. So चलिए. C. He knew what was going to happen to himself next minute. So यहाँ पे देखिए happen जो ये word आया है यानी घटना. So यहाँ पे आपको happening यूज करना है. ing लग जाएगा. So answer. He knew what could be happening to himself the next minute. D. If you find my answer satisfactory. Satisfactory. Will you give me 5 rupees? या समाधान कारक. Satisfactory यानी समाधान कारक. Satisfaction यानी समाधान होना. ठीक है. So the answer. If my answers give you satisfaction, will you give me 5 rupees? E. He shook his head regretfully. Regret यानी क्या कि खेद, दुख. Regretfully यानी दुख से. So हमें regret यूज करना है. Answer. He shook his head with regret. F. It was a bewildering crisscross of light rays. So bewildered हमें यूज करना है. यहाँ पे ing निकल जाएगा, ed लग जाएगा. So the answer is he was bewildered by the crisscross of light rays. Next. G. I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the author, overwhelmed by enthusiasm. अभी हमें enthusiasm ये जो word है इसकी जगह enthusiastically ये यूज करना है. ठीक है, यानी कि उत्साह से. Answer. I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other enthusiastically. यानी कि उत्साह से उसने ये कहा. ठीक है. H. You tried to kill him. आपने उसको मारने की कोशिश की. यहाँ पे आपको killing ये यूज करना है. Answer. You tried killing him. आपने उसे मारने की कोशिश की. Okay. I will prepare some nice stuff for her. यहाँ पे preparation आएगा. Prepare यानी तैयार करना. Preparation यानी तैयारी. Stuff यानी मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाऊंगी. Answer. I will make a preparation of some nice stuff for her. Okay, this is your answer. Next, the other groaned on hearing it. Heard. अभी hearing की जगह हमें क्या यूज करना है? Heard. Answer. The other groaned when he heard it. Okay. So चलिए यहाँ पे देखिए जो आपका राइटिंग स्किल ये जो एक टॉपिक रहता है 12th के एग्जाम में. ठीक है. सो उसमें स्पीच राइटिंग 4 मार्क्स के लिए था दिस ईयर 2020 में जो आपका एग्जाम्स हुआ. सो वहां पे आपको स्पीच राइटिंग 4 मार्क्स के लिए आया था. सो कुछ तो आप एक टॉपिक दिया जाता है और आपको स्पीच राइटिंग करनी पड़ती है. सो आप अपने नोटबुक में इसे ध्यान से लिखिएगा. क्वेश्चन नंबर A51. प्रिपेयर अ स्पीच ऑन साइंस एंड सुपरस्टिशंस. यानी कि ये जो एस्ट्रोलॉजर्स डे है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे ज्योतिषी का दिन. सो इससे रिलेटेड ये बात आ जाती है यानी कि विज्ञान और अंधविश्वास. इससे रिलेटेड आपको क्या लिखना है? स्पीच लिखना है. तो स्पीच की शुरुआत हम कैसे करते हैं? रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स. ओके, इस तरह से. I wish you all a very good morning. Today we are celebrating Science Day in our school and on this occasion I, रोहम कमाते. ओके, सो ये एक स्टूडेंट का नाम यहाँ पे मैंने दिया है. आप किसी भी स्टूडेंट का नाम, आप खुद का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा. Would like to say a few words about science and superstitions. Science and superstitions are two opposite ends of pole. यानी कि एक पोल की दो विरुद्ध दिशाएं हैं. Those who have the scientific attitude and believe in science cannot possibly believe in superstitions. जो विज्ञान में जिनको विज्ञान का ज्ञान है ओके और जो उसमें विश्वास करते हैं वो इतनी आसानी से अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते. आफ्टर ऑल फिर भी
What exactly are superstitions? यानी कि अंधविश्वास यानी क्या होता है? They are only some tales made up by people for some reason or the other. Tales यानी story. ये एक पुरानी स्टोरी है, old tales जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं. Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ. Many years ago, बहुत सालों पहले, in house in a village, एक गांव में एक घर था. They were having an auspicious function. A lot of food was being cooked. A cat and her kitten were moving about here and there in the kitchen, afraid that the cat would be. तो यहाँ पे उनके घर में एक auspicious function था and वो क्या करते थे, बहुत सारा खाना बनाते थे, बहुत सारा खाना बनाते थे एंड अ कैट एंड हर किटन वर मूविंग अबाउट हियर एंड देयर. और उनके जो किचन था वहां पर जो बिल्ली है, कैट यानी बिल्ली, किटन यानी बिल्ली के जो बच्चे रहते हैं, ठीक है. सो बिल्ली के बच्चे और जो बिल्ली है उनके घर में घूमते रहते थे. ऑस्पिशियस फंक्शन यानी कि क्या हम बोल सकते हैं इसको, शुभ कार्य इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है. अफ्रेड दैट द कैट वुड बी ट्रैम्पल्ड अपॉन और मे फॉल इनटू वन ऑफ द ओपन फायर्स, द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस ऑर्डर द सर्वेंट टू पुट द कैट एंड इट्स किटन अंडर अ बास्केट. और एक क्या होता है कि वो जो किटन है, कैट, वो जलती हुई आग में गिर जाएंगे. इस वजह से वो जो मिस्ट्रेस है वहां की, उसने कहा था कि वो बिल्ली और उसके बच्चों को बास्केट में डाल दो. And to do so every time there was a function in the house, there was superstition, and in some houses people actually brought a cat into the house and put it under a basket whenever they had function. और इसी तरह से उन्होंने आग में बिल्ली गिर जाएगी इसकी वजह से उस डर से बास्केट में बिल्ली को रखा और उसके बच्चों को. लेकिन इसके बाद गांव में किसी भी जगह जब कोई फंक्शन होता था तो वो लोग क्या करते थे कि बास्केट में बिल्ली और उसके बच्चे रखते थे या फिर एक बिल्ली लाके रखते थे. दिस इज व्हाट सुपरस्टिशंस आर ऑल अबाउट. यही होता है, जो एक इंसान चीज करता है वो दूसरी जब फॉलो करता है तो उसको ही हम सुपरस्टिशन कहते हैं, अंधविश्वास. द सुपरस्टिशन ऑफ बैड लक इफ यू वॉक अंडर अ लैडर टू हैज इट्स रीजंस. द लैडर कुड फोल्ड अप एंड इंजर अ पर्सन वॉकिंग बीनेथ इट और समथिंग कुड फॉल ऑन द पर्सन's हेड. जब आप किसी सीढ़ी के नीचे से गुजरते हैं, ठीक है, तो वो एक बैड लक बोलते हैं कि अगर आपका बैड लक हो, दुर्भाग्य हो, तो वो सीढ़ी आप पर गिर भी सकती है, ठीक है, और आपको लग भी सकता है. सो फ्रेंड्स, मित्रों, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन दिस एज ऑफ साइंस, अभी हम जो साइंस की एज में जी रहे हैं, डू नॉट बिलीव इन सिली सुपरस्टिशंस. मूर्ख जो अंधविश्वास की कथा है उस पर बिलीव ना करें, विश्वास ना करें. कीप योर माइंड्स ओपन, अपना दिमाग आप ओपन रखिएगा. बी रैशनल एंड लॉजिकल. रैशनल लॉजिकल यानी अपने दिमाग से काम लीजिएगा. एनालाइज थिंग्स, चीजों पर ध्यान दीजिएगा. बिलीव इन समथिंग ओनली इफ इट हैज द बैकिंग ऑफ साइंस. अगर किसी चीज पर विश्वास करना है तो तभी कीजिए जब उसको कुछ साइंस का उसके पीछे रीजन निकलता है. एंड थैंक यू. सो स्टूडेंट्स, ये आपका स्पीच राइटिंग के लिए 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 2020 में आया था. सो ये आप एक बार जरूर कीजिएगा प्रिपेयर. नेक्स्ट ईयर भी स्पीच राइटिंग के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको शुरुआत एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि किस तरह से करें. और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं. A52, रीड द फॉलोइंग प्रोवर्ब, शेयर योर व्यूज एंड एक्सपांड द आइडियाज. नीचे दिए गए जो वाक्य प्रचार है इनको आपको देखना है और इनको यूज करना है. यहाँ पर एक कंप्लीट किया गया है आपको, आपकी जानकारी के लिए. इसी तरह से बाकी की कंप्लीट करने हैं. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि बातों से ज्यादा जो आप काम करते हैं वो ज्यादा बोलता है. आंसर, टुडे अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इज बीइंग गिवन टू द वे वी स्पीक एंड व्हाट वी स्पीक. आजकल की दुनिया में ज्यादा इंपॉर्टेंस हम क्या बोलते हैं उस चीज को दिया जाता है. बट वी हैव टू रिमेंबर दैट अल्टीमेटली इट इज नॉट वर्ड्स बट एक्शंस दैट आर इम्पोर्टेंट. बट हमें एक चीज पर ध्यान रखना चाहिए कि बातों से ज्यादा काम ज्यादा बोलता है. महात्मा गांधी कहते हैं, द फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, डिड नॉट गिव एनी ग्रैंड स्पीचेस. ओके, कोई ग्रैंड स्पीचेस नहीं देनी है. हाउएवर, फिर भी बाय हिज एक्शंस, वो कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे, पर उनका जो काम था सॉ दैट इंडिया गेन फॉर फ्रीडम, कि भारत को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए वो बातों से ज्यादा उनके काम पर जोर दिया करते थे. आवर सोल्जर्स डू नॉट गिव लॉन्ग लेक्चर्स ऑन पैट्रियटिज्म. स्वतंत्रता के ऊपर हमारे जो सोल्जर्स है बड़े बड़े लेक्चर नहीं झाड़ते. दे मेरिली एक्ट टू डिफेंड द कंट्री, वो बॉर्डर पर खड़े रह के हमारी सुरक्षा करते हैं. What would have happened if they had only spoken but not act? अगर ऐसा होता कि हमारे सोल्जर्स भी बड़े बड़े हमारे नेता लोगों की तरह भाषण देते और कुछ नहीं करते, एक्शन ही नहीं करते, अगर बॉर्डर पे नहीं जाते और यहीं पे भाषण देते बैठते, तो हमारी इंडिया का क्या होता. ठीक है.
And this very well known proverb is very apt when it comes to parent child interaction. और जब पेरेंट्स और चाइल्ड यानी कि आपके माता पिता और आपके इंटरेक्शन में ये चीज बार बार आती है, इट हैज बीन सीन दैट चिल्ड्रन ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड इमिटेट देम, कि जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स की ही एक्शन फॉलो करते हैं, नॉट देयर वर्ड्स। उनके पेरेंट्स जो बोलते हैं वो उस पर नहीं ध्यान देते, लेकिन वो घर में क्या एक्शन करते हैं उस पर वो ध्यान देते हैं। इन द एनिमल किंगडम टू द एक्शन ऑफ द पेरेंट्स आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, यानी कि जो प्राणियों के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, एनिमल किंगडम यानी कि जो प्राणी जाति होती है, वहां पर भी उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के एक्शंस देख के ही सीखते हैं। ड्यूरिंग इलेक्शंस यानी कि जब इलेक्शन होता है, पॉलिटिशियन मेक्स लाउड स्पीचेस बट लेटर ऑन डू नॉट वर्क। ये जो नेता लोग होते हैं जब इलेक्शन आते हैं तब बड़ी बड़ी बातें ठोकते रहते हैं, और जब इलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वो कुछ नहीं करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर दैट दे लॉस द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, इसी वजह से लोगों का विश्वास उनसे उड़ जाता है। दस फिर भी वी मस्ट एक्ट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जो भी करें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। ऑलवेज रिमेंबरिंग दैट पीपल ऑब्जर्व आवर एक्शंस एंड आर नॉट स्वेड बाय आवर वर्ड्स, और हमेशा ध्यान में रखें कि लोग हमारी बातों से ज्यादा हमारे काम पर ध्यान देते हैं। बी द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, चेहरा हमारे दिमाग का आईना होता है, ठीक है। आंसर आर फेसेस, अभी इसको एक्सप्लेन करना है। आर फेसेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ आर माइंड्स, हमारे चेहरे से हमारे दिमाग में क्या चल रहा है इसका पता बहुत बार पता चल जाता है। A person does not have to literally spoke out every word or every emotion that crosses his mind. His action and his face reflects it for him. हर बार हमें सब बातें बतानी नहीं जरूरी पड़ती है। अगर हम दुख में हो तो चेहरे पर उदासी छा जाती है, तो आगे का इंसान समझ जाता है कि हाँ ये दुखी है। अगर हम हैप्पी है, ठीक है, तो हम हंसते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ तो अच्छा चल रहा है, ये सामने के इंसान को पता चल जाता है। इट मीन्स द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फेस दैट डिपिक्ट्स ईच एंड एवरी इमोशन ऑफ द माइंड्स आर आइज, और हमारे दिमाग में जो कुछ भी चलता है उसको जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी आंखें होते हैं। देयर इज फेमस सेइंग, यहाँ पर एक बहुत अच्छी कहावत है, आईज आर द मिरर ऑफ द सोल, कि आंखें हमारे आत्मा का आईना होता है। इफ वी ट्राई टू लुक इनटू द आईज ऑफ एनी लिविंग बीइंग, अगर हम किसी के भी आंखों में जाके वी कैन रीड द इमोशंस दैट दे डिपिक्ट, सो उनके दिल में क्या चल रहा है वो हमें पता चल जाता है। एनिमल्स हाउएवर कांट स्पीक, यानी कि प्राणी तो बोल नहीं सकते, बट यू कैन रीड देयर आइज, लेकिन उनकी आंखों से हमें उनके जो बिहेवियर है वो पता चल जाते हैं। सी स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्डन, बातें तो चांदी की तरह होती है, लेकिन जो हमारी चुप्पी होती है वो सोने की तरह होती है। आंसर देयर इज फेमस सेइंग दैट सेज, यहाँ पर एक बड़ी बहुत अच्छी कहावत है, स्पीच इज सिल्वर, यानी बातें तो चांदी की तरह होती है, साइलेंस इज गोल्डन, लेकिन जो हम साइलेंस जो चुप्पी होती है वो सोने की तरह होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? अनडाउटेडली साइलेंस इज अ ग्रेट वर्च्यू दैट ब्लॉसम विथ लॉन्ग ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, यानी कि चुप बैठने से भी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। देयर इज अनदर फेमस adage that can be cited in the context. The adage says deep rivers run quietly, कि शांत नदियां जो नदी शांत से बहती है वो बहुत ही डीप होती है। दिस एडेक्स सिग्निफाइज पीपल हु आर डीप थिंकर्स एंड हैव डीप नॉलेज अबाउट लाइफ, कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, अपने जीवन के बारे में, प्रेफर रिमेनिंग क्वाइट, वो ज्यादातर चुप ही रहते हैं। वी ऑफन इंस्ट्रक्टेड बाय आवर वाइज एल्डर्स एंड रिमेन क्वाइट इन क्रिटिकल सिचुएशन, हमें हमारे बड़ों से ये सलाह मिलती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो अब शांत रहा करो। देयर इज अ रीजन बिहाइंड देयर इंस्ट्रक्शन, कुछ तो उनके बात बताने के पीछे कुछ तो रीजन होता है। रिमेनिंग क्वाइट, द रीजन इज रिमेनिंग क्वाइट इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल, चुप बैठ रहना ये कुछ प्रैक्टिकल चीज नहीं है, बट द बेस्ट रिस्पॉन्स टू हैंडल एनी क्रिटिकल सिचुएशन, लेकिन किसी मुश्किल वक्त में अगर किसी चीज को संभालना है, ठीक है, तो चुप बैठने से भी बहुत सारे सवाल आसान हो जाते हैं और लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। डी, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ये थोड़ा हम इरेज कर लेंगे। ओके, चलिए। डी आर्गुमेंट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आर्गुमेंट यानी कि क्या हम बोलते हैं ना कि किसी से उसी एक ही बात पर अड़ जाना। दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, बात करने का ये बहुत ही बेकार तरीका है। आर्गुमेंट यानी बहस,
बहस करना बात करने का बहुत ही बेकार तरीका है। आंसर, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू फेमस सैटिरिस्ट जोनाथन स्विफ्ट, जो हमारे फेमस सैटिरिस्ट हैं जोनाथन स्विफ्ट, इनकी जो कहावत है, आर्गुमेंट इज द वर्स्ट सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कि बहस ये बात करने का बहुत ही गंदा तरीका है, बेकार तरीका है। यू मे बी इंक्लाइंड टू अग्री, योर ऑडियंस विल एक्सपेक्ट यू टू ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट। अगर आपके जो ऑडियंस है उनको ऐसा लगता है, जो सुनने वाली व्यक्ति है, कि आप उनको इज्जत दे, एंड टू प्रेजेंट योर आर्गुमेंट इन अ वे दैट डज नॉट मेक देम डिफेंसिव। और जब आप उनसे बात करें तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनको कुछ सुना रहे हैं या फिर उनसे कुछ बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आर्गुमेंट अफेक्ट्स द कम्युनिकेशन, इस वजह से क्या होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो खराब हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉफ्ट कम्युनिकेशन ड्यू टू आर्गुमेंट्स। और जब बहस चलती है तो उसमें सॉफ्ट यानी कि सीधी तरीके से बात करना बहुत ही मुश्किल होता है। इन केस ऑफ कम्युनिकेशन, आर्गुमेंट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल और हर्डल इन कन्वेइंग एन अप्रोप्रिएट मैसेज टू whomever इट मे कंसर्न। यानी किसी को भी आपको कुछ बात बतानी है, अगर आपकी बहस चल रही है तो ये बहुत ही यानी कि हम बोलते हैं ना, मुश्किल होता है कि अपनी बात उन तक पहुंचाना। आर्गुमेंट्स इंक्रीजेस पैनिक एज वेल एज डिस्कम्फर्ट सिचुएशन। इससे क्या हो जाता है कि आगे का इंसान भी पैनिक हो जाता है, उसको भी गुस्सा आने लगता है, और जो सिचुएशन होती है, जो बात करने की आपका जो तरीका होता है वो बिगड़ जाता है। सो वी मस्ट अवॉइड आर्गुमेंट्स इन आवर कम्युनिकेशन। इसलिए हमें बहस करना, हमारे कम्युनिकेशन में बातें करते वक्त बहस करना अवॉइड करना चाहिए। ई, एटीट्यूड्स आर द रियल फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि एटीट्यूड जो होते हैं इंसान में वो रियल फिगर ऑफ स्पीच रहते हैं। चलिए इसको आंसर लिख देते हैं। एडविन फ्रीडमैन सेड दैट कम्युनिकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन सिंटैक्स, इलोक्वेंस, रेटोरिक और आर्टिकुलेशन, बट ऑन द इमोशनल कॉन्टेक्स्ट इन विच द मैसेज इज बीइंग हेard। इन्होंने कहा है कि जो शब्द है, ठीक है, स्वल्प विराम है, पूर्ण विराम है, पंक्चुएशन मार्क जो होते हैं, तो इसके ऊपर आपका कम्युनिकेशन नहीं रहता, बट जो आपके इमोशंस हैं, ठीक है, उससे आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो। एटीट्यूड्स ही सेड आर द रियल फिगर्स ऑफ स्पीच, ये इंसान की एटीट्यूड, इंसान का एक रियल फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है। ही सेड दैट पीपल कैन ओनली हियर यू व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स यू एंड आर नॉट लाइकली टू हियर यू व्हेन योर वर्ड्स आर परस्यूइंग देम। कि जब लोग आप उनके साथ जब अच्छी तरह से बात करते हो तब वो उसी टाइम तभी सिर्फ वो आपकी बात सुनते हैं, लेकिन आप जब बहस करने लग जाते हो तब वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। ही एक्सप्लेन दैट इवन द बेस्ट वर्ड चूजन लॉस देयर पावर when they are used to overpower attitudes, यानी कि अच्छी बातें भी उतनी ही करें कि जिससे आगे के इंसान को ऐसा ना लगे कि ये बहुत ज्यादा ही बकबक कर रहा है। He said are the real figures of speech. Attitudes reflects in your language, in your speech. It helps readers to know about you. और जो आपका एटीट्यूड है, ठीक है, यानी कि जो हम बोलते हैं ना, उसमें तो बहुत एटीट्यूड भरा पड़ा है। तो एटीट्यूड को इंग्लिश में क्या कहते हैं कि रवैया, ठीक है, आपका जो तरीका है बोलचाल का, बातचीत करने का, वो तो ये जो है आपकी जो लैंग्वेज है उसको इफेक्ट करता है, आपकी जो आप जो बोल रहे हैं उसको भी इफेक्ट करता है, और जो आगे का इंसान है आपके एटीट्यूड से आपको पहचान सकता है। F, the wise man has long ears and short tongue, यानी कि जो बुद्धिमान मनुष्य है उसके कान बहुत लंबे होते हैं और उसकी जो जीभ होती है, टंग, वो बहुत छोटी होती है। ऐसा क्यों बोलते हैं? चलिए, इट मीन्स, इसका मतलब है दैट द वाइज मैन एक्चुअली लिसन टू मोर and absorbs the knowledge rather than constantly being argumentative or trying to waste words, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होती है वो ज्यादा सुनती है और कम बोलती है। इससे क्या होता है? उसका नॉलेज बढ़ता है। इन शॉर्ट इट मीन्स दैट इट इज बेटर टू हियर थिंग्स रादर देन आर्ग्यू और रिप्लाई ऑल द टाइम। ये अच्छा होता है कि हम किसी चीज को सुने ज्यादा, उससे बहस करने के अलावा या फिर उसको कुछ बोलने के अलावा। डूइंग सो मेनी एक्चुअली रिप लॉन्गर बेनिफिट्स, इफ यू लिसन अ लॉट यू विल गेट अ लॉट। अगर आप बहुत ज्यादा सुनते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बाय लिसनिंग, सुनने से, टू अदर्स यू ट्राइज टू नो देयर व्यूज, तो आपके उनके व्यूज पता चल जाते हैं, उनके एक्सप्रेशंस पता चल जाते हैं। ओपिनियंस यानी उनका क्या मत है, एक्सप्रेशंस यानी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये आपको आसानी से इन बेटर वे, आसान तरीके से पता चल जाता है। Question A61. Bill Norton has written a collection of wonderful stories which you can read in this book, The Goalkeeper's Revenge and Other Stories. आप ये जो बुक है इनका, बिल नॉर्टन का, आपकी लाइब्रेरी में देखिए या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे, द गोलकीपर्स रिवेंज एंड अदर स्टोरीज। सो यहाँ पर इसकी जो थीम है, स्टोरी की जो थीम है, वो इसमें जो आशय दिया गया है वो आपको के दोस्तों के साथ डिस्कस करना है।
ठीक है। सो ये आपका एक हम एक्टिविटी बोल सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया आपको क्या करना है। ऑनलाइन चेक कीजिएगा, आपको द गोल कीपर्स रिवेंज एंड अदर स्टोरीज बिल नॉर्टन का जो बुक है वो एक कॉपी मिल जाएगा पीडीएफ में, तो वो चेक कीजिएगा। एंड आपके दोस्तों के साथ उसमें थीम क्या है, द स्टोरी इज अबाउट व्हाट, ये डिस्कस कीजिएगा। 2. Read R.K. Narayan's humor collections of short stories, humorous collections of short stories and novels. Here are some titles you can read. Humorous यानी कि क्या, जो विनोदी बुद्धि हम बोलते हैं ना, मजाकिया उनका जो स्वभाव था कि मजाक होना, विनोदी बुद्धि। तो आर के नारायण जी के ऐसे ही कुछ बुक्स है वो आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे देखिएगा, नंबर 1 अंडर द बनियान ट्री, ये एक बुक है। बी द डॉक्टर्स वर्ड, C. Lolly Road, D. A Horse and Two Goats, E. Gateman's Gift. These are the 5 books, ये आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है सर्व द इंटरनेट एंड फाइंड आउट द करियर अपॉर्चुनिटीज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी कि आकाशयान, ठीक है। तो वहां पर अगर आपको कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सा है वो इंटरनेट से चेक करके पढ़िएगा। सो स्टूडेंट, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।